Hello student, welcome to the Bharat Academy. Myself Manoj Thapliyal, and today we will discuss various type of research. As you know, there are two type of research. First is the research based on purpose of research, and second one research based on approaches of studying variable. And in my last video, we have already discussed the researches based on purpose of research, that is basic research and applied research. Now today we will discuss the researches based on approaches of studying variable. These are again of two type, as you know. First one is quantitative research and second one is qualitative research. तो ये आपको पता है कि रिसर्च जो इस वेरिएबल की स्टडी के आधार पे दो तरह के होते हैं. पहला है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड दूसरा है क्वालिटेटिव रिसर्च. तो आई वुड लाइक टू गिव यू some idea about the variable. What is variable? It is qualitative or quantitative characteristic which can change its value and it can be measured on a scale. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक ऐसा डाटा है, ऐसा फैक्ट जो अपनी वैल्यूज को बदलता है और जो मेजर किया जा सकता है किसी भी स्केल पे. दैट इज वेरिएबल. हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, hemoglobin percentage, blood sugar level, all are variable. These changes from individuals to individual, they vary from individual to individual, I must say. So now today we will focus only on the researches based on approaches of studying variable, that is quantitative research and qualitative research. Let us get started. Quantitative research, as you know, quantitative, as its name suggests itself, quantitative means in which the data are collected in quantity. Quantity means numbers, in which data are collected in numbers, quantity, numerics. This quantitative research is again classified into two parts. First one is experimental research design and second one is non-experimental research design. And this experimental research design, the first one, is again classified into three parts. First one is true experimental, second one is quasi-experimental, and the last and third one is pre-experimental. And as far as non-experimental research designs are concerned, this is again classified into four parts. First one is descriptive, correlational, then developmental, and the last and fourth one is survey. तो आज हम स्टूडेंट्स यही हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के जो क्लासिफिकेशन है, वी विल डिस्कस इट टुडे. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड. Quantitative research. What is this quantitative research? It gathers the data in numerical form which can be put into categories or in ranks, order, or measured in unit of measurements. इसमें होता क्या है? इसमें डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में हम गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं. उसके बाद उसको कैटेगरीज में रखते हैं, रैंक ऑर्डर में रखते हैं और उनको मेजर करते हैं. मोस्ट पॉपुलर रिसर्च मेथड ऑफ दिस कैटेगरीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर, कोरिलेशनल रिग्रेशन एनालिसिस. तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर रिसर्च मेथड्स हैं वो हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर, जिसमें यस और नो में आंसर दिया जा सकता है, इन विच यू कैन आंसर आइदर इन यस और नो. फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक कॉफी? तुम यही बोल सकते हो, या तो यस या तो नो. दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर. कोरिलेशनल एंड रिग्रेशनल, इसमें रिलेशनशिप को कोशिश करते हैं बताने की दो वेरिएबल्स के बीच में. Next, first point is quantitative research is systematic investigation of observable event via statistical, mathematical or computation technique. Quantitative research एक systematic investigation है, systematic खोज है किसी भी event की जो हम करते हैं statistics से, math से और other computation techniques लगा करके. Second one is any research problem which can be measured in number. In quantitative research, the research problem or research topic हमेशा numbers में measures किए जा सकते हैं. And in quantitative research, any research problem, मैंने कहा था research problem कोई problem नहीं होती है, ये एक research topic को बोलते हैं research problem. The topic which you want to study is called research problem. Third one,
Experimental and non-experimental research are the major classification of this research. इस quantitative research के दो classification है, experimental and non-experimental research. और एक छोटा सा मैं ऐसे ही बता दूं आपको एक्सपेरिमेंटल के बारे में, इन विच वी हैव द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होते हैं, आई वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, विच कैन मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स जो हमारे रिसर्च का टॉपिक होता है. We will discuss all these independent and dependent variable later on. Now the next is in quantitative research the data are collected in numerical form. Quantitative data research में जो डेटा है वो हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर सिस्टम होता है उसमें. जैसे एग्जांपल ले लिया, डाटा इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज फॉर्म नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल इसमें करते हैं. जैसे दो विलेजेस ले लिए ए और बी, और उस पर फीमेल मेंबर्स को हम कलेक्ट करना चाहें, फीमेल मेंबर्स का डाटा, तो सपोज करो ए विलेज में 395 फीमेल थे और बी विलेज में 498 फीमेल मेंबर्स थे. तो दीज आर पुट इन द नंबर्स, दैट्स व्हाई दिस इज क्वांटिटेटिव डाटा. Next point is researchers use tools such as questionnaire or equipments to collect the numerical data. इस quantitative data में जो research tool हम इस्तेमाल करते हैं वो questionnaire होता है. What is questionnaire? Questionnaire is a set of questions which are given to the samples, individuals. जो भी samples लेते हैं हम individual का लेते हैं, किसी objects का लेते हैं, तो उनको क्वेश्चन का एक सेट हम दे देते हैं, उससे उस सेट को देने के बाद जो भी उनका रिस्पॉन्स रहता है उससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड क्वेश्चनायर. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन लार्ज सैंपल टू जनरलाइज द रिसर्च फाइंडिंग. क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है हमेशा लार्ज सैंपल्स के ऊपर कंडक्ट की जाती है. जब सैंपल साइज बहुत लार्ज होता है तभी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, जिससे हम अपनी जो फाइंडिंग्स है रिसर्च की वो हम जनरलाइज कर सकें, एक हम सारी दुनिया को बता सकें कि यही होता है. दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग. तो यही है कि जब सैंपल इज वेरी लार्ज देन वी कंडक्ट दिस टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट 8th point is the nature of quantitative research is objective since it is either experimental or non experimental. जो हमारा नेचर होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का वो ऑब्जेक्टिव होता है. वो ऑब्जेक्टिव क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ. जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ही तो लिखते हैं कि ये हम ये निकालने जाएंगे, क्योंकि हम ये जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. नॉन एक्सपेरिमेंटल भी होगा तो उसमें भी हम न्यूमेरिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. तो दैट इज वाई नेचर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव. Next point is it is used to develop the hypothesis. The main aim of the quantitative research is to test the hypothesis. यही होता है. कोई कहे कि क्यों करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च को, तो यही है जवाब, यही हमारा आंसर होगा कि to test the hypothesis. What is hypothesis? It is a tentative statement of our research problem which is yet to be tested, yet to be verified you can say. तो यही हमारा मेन एम होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. नेक्स्ट इज 10th point is in quantitative research we use the deductive reasoning. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी एग्जाम देंगे आगे नेट का या हायर एजुकेशन का, उसमें यही सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है कि किस तरह की रीजनिंग हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में. तो इसका आंसर यही है, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी यूज डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव का मीन्स जनरलाइज से स्पेसिफिक कैरेक्टर में बनाना, उसको जनरलाइज टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते हैं अपने रिसर्च प्रॉब्लम को. कहने का मतलब जो भी हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होगा, रिसर्च टॉपिक हो, उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हम बनाते हैं ताकि हम उसका इजीली हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सके इन दो मेथड से जो अब अभी बताए, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल. तो दैट्स व्हाई इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी यूज द डिडक्टिव रीजनिंग इन विच द entire research problem is divided into small objectives so that we can test the hypothesis through experimental or non-experimental method. कहने का मतलब generalize to specific में जाना होगा, this is called deductive. बड़े से छोटे में तोड़ना, this is called deductive. इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, if A, B, C are three variable, if A is equal to B, B is equal to C, तो इसका मतलब क्या है,
A is also equal to C. These are the certain features of quantitative research in which the data are collected in numeric form. Let us have a quick recap. Research tool which is used in quantitative research, this is questionnaire. वो बता चुके हैं हम कि questionnaire क्या होता है. सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो सैंपल्स को दिए जाते हैं, और जो किस तरह का सैंपल पे इसको इस्तेमाल करते हैं. When the sample is very large, then we conduct the quantitative research. और जो एम है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, दैट इज ऑब्जेक्टिव. नेचर, एम नहीं, नेचर कह सकते हैं. नेचर ऑफ द क्वांटिटेटिव रिसर्च इज ऑब्जेक्टिव. और सबसे इंपॉर्टेंट और यही है कि क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को. ये तो यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च का. और यही कहा कि जो रीजनिंग हम इसमें इस्तेमाल करते हैं दैट इज डिडक्टिव. नाउ एग्जांपल बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव रिसर्च आई वुड लाइक टू मेंशन हियर. ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन द प्रेवलेंस ऑफ बेड शोर अमंग द पेशेंट एडमिटेड इन आईसीयू. आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनमें बेड शोर हो जाता है ज़्यादा दिन तक अगर वो एडमिट रहेंगे. तो उस बेड शोर की प्रेवलेंस को चेक करने के लिए कोई स्टडी करता है. इन दिस रिसर्च स्टडी द रिसर्च डील विद न्यूमेरिकल डाटा. इस तरह की जो रिसर्च स्टडी होती है उसमें जो रिसर्चर है वो न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है. नाउ as you know, there are two type of quantitative research: experimental research and non-experimental research. So what is the experimental research? Let us discuss experimental research first. What is experimental research? In chemistry, biology and physics you have conducted so many experiments. Now what is the definition? आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा एक्सपेरिमेंट्स का. What is the definition of experiment? A trial or a test that is conducted in a particular setting is called experiment. एक ट्रायल और टेस्ट जो एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर किया जाता है उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. और देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू रिसर्च. किसी भी रिसर्च करने की एक साइंटिफिक अप्रोच होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेयर वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर मैनिपुलेटेड. जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एंड देन अप्लाई टू वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल. तब उनको हम एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई करते हैं. टू मेजर देयर इफेक्ट ऑन द लेटर, जिससे हम उनका असर दूसरे पे देख पाएं, तो चेक कर पाएं, उनका इफेक्ट हम मेजर कर पाएं दूसरे पे. द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड ओवर सम टाइम. इसमें करते क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका असर देखने के बाद द रिसर्चर इज ड्रॉइंग ए रीजनेबल कंक्लूजन. तब जाके रिसर्चर कोई कंक्लूजन निकाल पाता है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स. उन दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है ये निकालने के लिए वो इफेक्ट देखता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट के ऊपर. तो यही है डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे मैं इसको इस एग्जांपल से समझाऊं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. सपोज कीजिए एक पेशेंट इज इन पेन, पेशेंट विद द पेन, एंड नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया पेन किलर इंजेक्शन. Patient is totally dependent on painkiller injection. The patient is the dependent variable and painkiller injection is your independent variable, since we can change this injection's dose. So this is experimental research. This is the definition. Now certain characters regarding the experimental research are: फर्स्ट इज मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एज आई हैव टोल्ड यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसमें. जैसे सपोज करो जो भी डोज हमें देनी है पेन किलर की, उसी हिसाब से पेशेंट पे उसका असर दिखेगा. सेकेंड वन, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल. इसमें वेरिएबल को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर और आपका जो भी हीमोग्लोबिन परसेंट है, दीज all we can measure. Control process, since it is done in the laboratory, hence everything is under control. Next is environmental variables are controlled.
इन्वायरमेंटल जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको हम यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज इट इंक्लूड्स द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में मेन चीज यही है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज हाइपोथेसिस। नेक्स्ट इज देयर आर डेफिनेट इन नेचर। नेचर जो इनका जो नेचर होता है वो डेफिनेट है। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिव, रिलायबल एंड वेरीफाइएबल। जो इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो रिजल्ट है वो उद्देश्य होता है उनका कुछ ना कुछ, रिलायबल उन पर भरोसा कर सकते हैं, वेरीफाइबल उनको आप प्रमाणित कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पावर ऑफ प्रेडिक्शन। हम किसी भी इवेंट पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी भी फिनोमेना के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्योराइजेशन कैन बी डन। जब हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम कोई थ्योरी जनरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यही बताया कि रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल। रिजल्ट्स आर जनरलाइजेबल। रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऐसे होता है कि जिसको हम सामान्य बना सकें, पब्लिक तक पहुंचा सकें कि ऐसा ही होता है। दिस इज जनरलाइजेबल। नेक्स्ट, these are the characteristics of experimental research. Now we come to the next, that is classification of experimental research design. The experimental research design is classified into three parts. First one is true experimental research design, second one is quasi-experimental research design, and third one is pre-experimental research design. So what are these experimental research design? Now I come to the first one, that is true experimental research design. What is true experimental research design? It will be having three characteristics. First is manipulation, second one is randomization, third one is control. क्या होता है इसमें? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में। पहला है मैनिपुलेशन, दूसरा है रैंडमाइजेशन, तीसरा है कंट्रोल। एंड व्हाट आर दीज मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन? फर्स्ट आई विल ट्राई टू डिस्कस मैनिपुलेशन. व्हाट इज मैनिपुलेशन? In manipulation, we should know two things about manipulation. First is independent variable or second one is dependent variable. I will explain it by giving you an example. For example, there is two variables, one is chocolate and second one is crying child. In this case, the chocolate, as you give the chocolate to crying child, suddenly she stops crying. तो इसमें है कि हो क्या रहा? The researcher is observing the effect of chocolate on crying child. Similarly, I will give you second example. Painkiller is one variable and patient with the pain is second variable. As you give the painkiller injection to patient, he suddenly starts recovering. तो क्या हो रहा है? In this case, the researcher is observing the effect of independent variable which are chocolates or painkiller. He is trying to observe the effect of independent variable on dependent variable. Dependent variable here is crying child or patient with pain. So I hope you have understood what is independent variable or dependent variable. So what we do in manipulation, we check the effect of independent variable on dependent variable. तो अब मैं ये सोच सकता हूँ कि आप लोगों को ये मैनिपुलेशन समझ में आ गया होगा। इसमें मैनिपुलेशन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर दिखता है वो हम चेक करते हैं। अभी बताया एग्जांपल देके कि चॉकलेट इज इंडिपेंडेंट, पेन किलर इज इंडिपेंडेंट, क्राइंग चाइल्ड इज डिपेंडेंट, पेशेंट इज डिपेंडेंट। तो ये हो गया आपका मैनिपुलेशन। नेक्स्ट वन इज रैंडमाइजेशन. व्हाट इज रैंडमाइजेशन? रैंडमाइजेशन इट इज अ सर्टेन सिलेक्शन विदाउट एनी प्लानिंग और विदाउट एनी प्री प्लानिंग. ये एक सिलेक्शन है बिना किसी प्लानिंग के, उसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन. जैसे मैं आप लोग अगर 30 लोग बैठे हैं, मैं तुरंत एज ए टीचर आपकी क्लास में एंटर करता हूं और किसी भी 4 लड़कों से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता हूं बिना उनके कास्ट, क्रीड और रिलीजन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के किसी भी 4 बच्चे को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता हूं. तो दिस इज ए सर्टेन सिलेक्शन विदाउट एनी प्लानिंग which is called randomization. बिना प्लान के सिलेक्शन करना, this is randomization. Third characteristic is control. What is control? Control in experimental research design there is a control group. Control group क्या होता है? The standard to which the comparison is made and which receives no effect. ये कह रहा है
which receives no treatment and whose effect is already known. क्या होता है कंट्रोल ग्रुप? क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में? कंट्रोल ग्रुप होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसके आधार पे आपके रिसर्च के जो रिजल्ट है वो कंपेयर किए जा सकते हैं। और विच रिसीव्स नो ट्रीटमेंट, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, हुज इफेक्ट इज ऑलरेडी, जिसके इफेक्ट हमें पहले से ही नोन होते हैं, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। तो ये अभी हमने आपको समझाने की कोशिश करी कि इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन इन विच दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल। तो ये अगर तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में पाए जाएंगे, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल आर इन एन एक्सपेरिमेंट, तो देन दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन किस भला का नाम है। तो ये यही होता है जिसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे जिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल, उसको बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। नाउ आई कम टू द सेकंड वन, दैट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। व्हाट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन? इन क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन द मैनिपुलेशन इज प्रेजेंट। मैनिपुलेशन तो रहेगा ही रहेगा उसमें, लेकिन आइदर जो तीन फैक्टर मैंने बताए थे, मैनिपुलेशन, रैंडमाइजेशन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन विल बी 100% देयर, बट आइदर रैंडमाइजेशन और कंट्रोल विल बी मिसिंग, विल बी absent। ओके, या इसका मतलब क्या है कि क्वासी एक्सपेरिमेंट में दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मैनिपुलेशन तो 100%, इट्स ओके, बट जो बचे हुए दो हैं, रैंडमाइजेशन और कंट्रोल, उनमें से एक विल बी absent। So this is called quasi-experimental research design. Now I come to the third one, that is pre-experimental research design. What is this pre-experimental research design? In pre-experimental research design, manipulation is 100% present. Manipulation will be there, but there is no randomization and there is no control. So I hope you have understood what is this classification of experimental research design. Now, student, आई कम टू द नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अभी तक तो हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में आपसे डिस्कस किया था, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होंगे और कई तरह के फैक्टर्स उसमें थे। तो नाउ आई कम टू द सेकंड वन, दैट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन? ए रिसर्चर इज एग्जामिनिंग द थिंग दैट इज हैपनिंग नेचुरली। इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, रिसर्चर किसी भी चीज को एग्जामिन करता है जो नेचुरल वे में होती है हमारे साथ, किसी भी नेचुरल सेटिंग में वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। इन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन देयर इज नो एक्सपेरिमेंट। In non-experimental research design, there is no manipulation, there is no control. This is very important fact regarding non-experimental research design. As I have told you, in this case, researcher is just examining the things that is happening naturally, natural तरीके से हो रहा है, और there is no manipulation, there is no control. Manipulation means here, the manipulation means outside source. मैनिपुलेशन का मतलब बाहर से ली हुई है कोई सोर्स को बोलते हैं मैनिपुलेशन। यहाँ सपोज ए पर्सन इज इन पेन, सपोज किसी आदमी को पेन हो रहा है, ही इज गिवन ए पेन किलर इंजेक्शन, उसको पेन किलर इंजेक्शन दे देते हैं, तो दिस इंजेक्शन इज ए आउटसाइड सोर्स इन दिस केस। ओके, पेन हो रहा है, उसको इंजेक्शन दे रहे हैं, तो दिस इज आउटसाइड सोर्स, बट हेयर वी डोंट गिव एनी outside source. In the case of non-experimental research design means there will be no manipulation. So this is all about non-experimental research. Now I come to the classification of non-experimental research design. Actually, there are four types of classification of non-experimental research design. First one is descriptive, second one is correlational, third one is developmental, and fourth one is survey. Let us get started with the descriptive research design. What is descriptive research design? In this, the researcher will observe, researcher will document, and researcher will describe the phenomena that is happening naturally. No manipulation at all. कहने का मतलब एक ऐसी घटना जो प्राकृतिक तरीके से हो रही है, नेचुरल तरीके से हो रही है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, कई तरह से हो सकता है,
जैसे अभी मैं आई विल डिस्कस इट लेटर ऑन, एक ऐसी घटना जो प्राकृतिक तरीके से नेचुरल तरीके से हो रही है जिसमें मैनिपुलेशन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। रिसर्चर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, रिसर्चर डॉक्यूमेंट करता है, रिसर्चर उसको डिस्क्राइब करता है उस घटना को जो प्राकृतिक तरीके से होती है। Researcher will observe, document, and describe the phenomena that is happening naturally, and no manipulation is used here. Here, the researcher is observing the things regarding, जैसे हम बोल रहे हैं नेचुरल तरीके से हो रही है, तो व्हाट डज इट मीन? ही इज ऑब्जर्विंग द थिंग रिगार्डिंग, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, he is observing the things regarding the severity, regarding the frequency. For example, researcher is examining the back pain among the nurses working in ICU in a hospital. रिसर्चर सपोज करो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जो नर्सें काम कर रही है उनके बैक पेन के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, वो एग्जामिन कर रहा है उस चीज को कि जो बैक पेन है नर्सेस का वर्किंग इन ए आईसीयू हॉस्पिटल। हेयर द रिसर्चर इज जस्ट ऑब्जर्विंग, यहाँ रिसर्चर केवल ऑब्जर्व कर रहा है द सिवियरिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बैक पेन अमंग द नर्सेज। केवल वो ऑब्जर्व कर रहा है कि बैक पेन की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना सिवियर है, बट नो मैनिपुलेशन इज डन, नो मेडिसिन इज डन, नो मेडिसिन इज गिवन to them. So this is called descriptive research design, in which the researcher will observe, document and describe the phenomena that is happening naturally. ये जो हो रहा है नेचुरल तरीके से उसको ऑब्जर्व करता है, डॉक्यूमेंट करता है वो, और लास्ट में उसको डिस्क्राइब करता है जो प्राकृतिक तरीके से होती है। Main feature of the descriptive research design is this design is used to observe, document and describe a phenomena in its natural setting without any manipulation or control. यही मैंने अभी बताया था कि इसमें हम करते क्या हैं, रिसर्चर इसमें ऑब्जर्व करता है, डॉक्यूमेंट करता है और डिस्क्राइब करता है किसी भी घटना को विच इज हैपनिंग इन नेचुरल सेटिंग, जो प्राकृतिक तरीके से होती है विदाउट एनी मैनिपुलेशन और कंट्रोल के, जो बिना किसी मैनिपुलेशन और कंट्रोल के घटित होती है। सेकेंड पॉइंट इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर डिजाइन टू गेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स विद पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंक्वायरी। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की इंक्वायरी के लिए दिस स्टडीज आर डिजाइन टू गेन मोर इंफॉर्मेशन, जिससे हमें किसी भी फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले, या वहाँ भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट इज द डिस्क्रिप्टिव डिजाइंस में बी यूज टू डेवलप थ्योरीज। डिस्क्रिप्टिव डिजाइंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं थ्योरीज को डेवलप करने में, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को पहचानने में, और मेक जजमेंट, जिसमें हम कोई ना कोई जजमेंट निकाल सकें। फोर्थ एंड लास्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव स्टडी डोंट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं करते, एंड वेरिएबल्स आर स्टडीड एज दे एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। वेरिएबल्स को स्टडी की जाती है जैसा कि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। These are the main features regarding the descriptive study. Now I come to the second one, that is the correlational designs. In this case, the researcher is examining the cause as well as the effect relationship between the two things. इसमें करते क्या है, रिसर्चर दो चीज़ों पे या दो वेरिएबल्स के कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को एग्जामिन, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, इन विच द रिसर्चर इज एग्जामिनिंग द स्मोकर। क्या करेगा वो, स्मोकिंग और लंग कैंसर के ऊपर रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है रिसर्चर। वो किसको एग्जामिन करेगा, स्मोकर्स को जो सिगरेट पीते हैं, टू फाइंड द कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। ये पता लगाने के लिए, कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप पता करने के लिए स्मोकिंग और कैंसर, लंग कैंसर में क्या रिलेशन है। मेन फीचर्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज, first one, in the correlational study the researcher is examining the strength of relationship between the variables by determining how the change in one variable is correlated with the change in other variable. correlation क्या होता है, ये अब आगे आने वाले टॉपिक्स भी होंगे तुम्हारे। correlation मतलब a relation in which a relation between the two variables, a relation between the two variable in which one variable is changing, another is also changing, that is called correlational. So in correlational studies the researcher examine the strength of relationship between the variables. इस रिसर्चर वेरिएबल्स के बीच में स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को चेक करता है, कितना रिलेशनशिप है इनके बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, बाय डिटरमाइनिंग हाउ द चेंज इन वन वेरिएबल, ये पता करके हाउ द चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में
क्या चेंजेज आते हैं। यही कोरिलेशनल स्टडी का मेन मोटो है कि दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने के लिए और ये चेक करने के लिए एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो दूसरा किस तरह से वेरिएबल चेंज हो रहा है, वो हम यहाँ चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल विदाउट मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर को चेक करते हैं बिना विदाउट मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किए बगैर। थर्ड पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर मेजर्ड बाय ए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है और किस दिशा में है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है कितना है और किस डायरेक्शन में है, इसको मेजर करने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वेयर द रिजल्ट्स रेंज फ्रॉम -1 to +1। इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी जो रेंज है वो है -1 to +1। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। इफ स्मॉल आर इज +1 विच शोज परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आर की वैल्यू +1 है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशन है वो परफेक्ट और पॉजिटिव होता है। इफ आर इज इक्वल टू -1 है तो इट शोज द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाता है। इफ आर इक्वल टू 0, R means coefficient of correlation. If R equal to 0, तो there is no relation between the variable। तो उस केस में दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, if a study was conducted to examine the effect of age on the physical performance। ये चेक कर रहे हैं कि एज का फिजिकल परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है किसी आदमी पे। इफ आर, सपोज करो इस आर की वैल्यू -0.8 आती है तो क्या मतलब है इसका कि देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है एज और फिजिकल परफॉर्मेंस के बीच में एक नेगेटिव कोरिलेशन है, विच मीन्स द फिजिकल परफॉर्मेंस डिक्रीजेज एज द एज इंक्रीजेज। साफ मतलब है किसी भी आदमी की फिजिकल परफॉर्मेंस घटती है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। तो आप hope you have understood what is the correlational study. Next and last point is, correlation studies are known as cause and effect study, where the cause and effect relationship is investigated। cause and effect relationship को investigate करते हैं without imposing external investigation। so this is correlational study। next point is developmental research design। third, what is developmental research design? Here the researcher is examining the thing at a particular point of time। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिसर्चर किसी भी चीज को एग्जामिन कर रहा है। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल से। इफ ए रिसर्चर इज स्टडिंग द एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ नर्सेज टुवर्ड्स द नर्सिंग प्रोफेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। क्या कोशिश कर रहा है, नर्सेस प्रोफेशन में कोई इंटर करता फर्स्ट टाइम नर्सेस, उनका एटीट्यूड और उनके परसेप्शन को वो स्टडी कर रहा है जब वो बिगिनिंग में, जब वो उस कोर्स में एडमिशन लेते हैं। टिल द एंड ही इज ऑब्जर्विंग एंड एग्जामिनिंग द नर्स स्टूडेंट। आखिर तक भी वो उनको ऑब्जर्व करता है और एग्जामिन करता है उन नर्सिंग स्टूडेंट्स को। तो दिस इज डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन। नाउ आई कम टू द लास्ट वन, which is survey research design। what is survey research design? In survey research design we are collecting the information from the subjects regarding their opinion, regarding their attitude, regarding their perception towards a particular thing। किसी भी चीज के ऊपर इसमें जो रिसर्चर है he tries to collect the information from the subjects, उनकी ओपिनियंस लेकर के, regarding their opinion, regarding उनका attitude, regarding their attitude and regarding their perception, क्या उनका perception रहेगा उस चीज के ऊपर। तो how is their view on that thing? He tries to find all these things। what are the main features of survey study? main feature is, first one is it provides the information on what the people do, eat, seek health care and so on। इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, क्या लोग खाते हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी हेल्थ केयर किस तरह की है, ये देखते हैं।
and so on, which is collected through the face to face interview, जो कि हम face to face interview और questionnaire से कर सकते हैं, telephonic interview से हम collect कर सकते हैं data. Second point, a survey helps to collect wide range of data from given population such as action, attitude, opinion, perception and behavior and so on. रिसर्च जो सर्वे है, सर्वे स्टडी, सर्वे रिसर्च, ये हेल्प करता है डाटा को कलेक्ट करने में किसी भी पॉपुलेशन के, सच एज एक्शन है उनका, एटीट्यूड क्या है, ओपिनियन क्या है, परसेप्शन क्या है, क्या बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हम सर्वे रिसर्च में करते हैं. सर्वे रिसर्च, नेक्स्ट इज सर्वे रिसर्च इज द मोड ऑफ इंक्वायरी दैट रिलाइज हैवीली ऑन द वैलिडिटी ऑफ वर्बल रिपोर्ट्स. ये इंक्वायरी करने का एक तरीका है सर्वे रिसर्च, जो टोटली रिलाई करती है ऑन वर्बल रिपोर्ट्स, जो हम मौखिक रिपोर्ट होती है उनके आधार पे, जो वर्बल इंटरव्यू, वर्बल हम उनके डाटा कलेक्ट करते हैं वर्बल इंटरेक्शन से. It heavily relies upon the validity of verbal reports, जो हमारे आपसी बातचीत होती है उस पर ज़्यादा निर्भर करती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द मोस्ट कॉमन मेथड इन क्वेश्चनिंग फ्रॉम द रेस्पोंडेंट बाय सेल्फ रिपोर्टिंग, क्वेश्चनायर और फेस टू फेस इंटरव्यू. इस सर्वे रिसर्च में करते क्या है, सर्वे रिसर्च में मोस्ट कॉमन मेथड होता है वो होता है क्वेश्चनिंग फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, जो भी जिन पे जो सैंपल हमने लिए उनसे क्वेश्चनिंग करके, बाय सेल्फ रिपोर्टिंग, खुद में भी रिपोर्टिंग करके, क्वेश्चनायर सेट ऑफ क्वेश्चंस दे करके उनसे, और उनसे फेस टू फेस इंटरव्यू करके, जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, जो सैंपल्स हैं. तो इस तरह से हम इसमें कॉमन मेथड इसमें यूज करते हैं सर्वे रिसर्च में. नेक्स्ट पॉइंट इज सर्वे कैन बी डिस्क्रिप्टिव. ये बताया अभी इसने, सर्वे can be descriptive, exploratory, comparative and correlational depending upon the nature of phenomena being studied. सर्वे किस तरह की होती है, हो सकती है डिस्क्रिप्टिव, हो सकती है एक्सप्लोरेटरी, हो सकती है कंपेरेटिव, हो सकती है जिसकी तुलना की जा सकती है, कोरिलेशनल हो सकती है. कोरिलेशनल मतलब जिसमें दो वेरिएबल का रिलेशन हम चेक करते हैं, ये देखने के लिए कंडीशन ये होगी कि एक बदल रहा है तो दूसरा भी चेंज होना चाहिए. इस तरह के हम करते हैं सारी स्टडीज सर्वे के अंदर. Next point is if the survey is conducted on a sample of population, it is called sample survey. जब हम ये कहता है लास्ट में, if a survey is conducted on a sample population, अगर sample population की सर्वे किया जाता है, it is called sample survey. Easy to understand. जब ये population sample पे कंडक्ट किया जाएगा तो दिस इज कॉल्ड सैंपल सर्वे. इफ द एंटायर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व, अगर सारी पूरी एंटायर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व तो देन इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन सर्वे. अगर सैंपल पॉपुलेशन के सैंपल पे अगर सर्वे करता है तो दिस इज कॉल्ड सैंपल सर्वे, और एंटायर पॉपुलेशन पे सर्वे करता है तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन सर्वे. जैसे सेंसस हो गया, जनगणना है इंडिया की, उसी से तो पता चलता है कितनी हमारी पॉपुलेशन है एंड सो ऑन. तो दीज आर the classification of your experimental research and non-experimental research design. Now student, with this the lecture is over. If you have found this video interesting and helpful, so please like my video, subscribe my channel. Thank you very much for being with me. Thanks a lot.